میرے تقریباً 15 سے زیادہ یوٹیوب چینل جو ڈیلیٹ ہو گئے. اتنی زیادہ غلطیاں کی ہیں نا، اتنی زیادہ غلطیاں کی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یار. یہ سوال بہت ہی اہم ہے آپ سب کے لیے. اچھا یار، یوٹیوب جب میں نے سٹارٹ کیا نا، سب سے جو بڑی مشکل مجھے آئی نا، ان کا مجھے پتا تھا یار یہ چینل ہوتے ہیں، مگر یوٹیوب پر چینل بنتا ہے اس کا مجھے نہیں پتا تھا. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو. کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے. الحمدللہ ہلکا ہلکا سورج نکل رہا ہے اور صبح سے ہمارے پاس بہت زیادہ دھند پڑی ہوئی تھی. آج کا ولاگ میں نے سیڑھیوں کے اوپر کھڑے ہو کے شروع کیا ہے. یہ ہمارے گھر کا ویو چیک کریں اوپر سے، ماشاءاللہ. آج کا ولاگ بہت زیادہ اسپیشل ہونے والا ہے کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر آپ سب کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری لائف سٹوری والی ویڈیو پر اتنا زیادہ پیار دکھایا. ماشاءاللہ ایک دن کے اندر ہی لاکھوں ویوز اس ویڈیو پر آ گئے ہیں الحمدللہ. اور اس وقت جناب ٹائم ہو گیا ہے 9:45 یعنی کہ 9:45. اور اس وقت جناب سین یہ ہے کہ ہمارے گھر کے قریب ہی محفل ہے جو کہ عورتوں کی محفل ہے، جس میں امی جان اور بیگم صاحبہ نے جانا ہے. میں نے ابھی ان کو چھوڑ کے آنا ہے. ان کو چھوڑ کے آنے کے بعد انشاءاللہ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جس میں آپ سب کے سوالات کے جوابات دوں گا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیوٹ سی بچی بھی ریڈی ہو گئی ہے محفل پہ جانے کے لیے. جانا ہے آپ نے محفل پہ؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک نعت بھی یاد کریں، جب اگلی بار محفل پہ جانا نا پھر آپ نے نعت بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں شاباش. چلیں بھی ابھی میں چھوڑ کے آتا ہوں امی جان کو، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیہات میں ماشاءاللہ صبح کا ماحول چیک کریں. ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے، ہلکی ہلکی دھند پڑی ہوئی ہے مگر پھر بھی لوگ جو ہے نا اپنے اپنے کاموں میں نکلے ہوئے ہیں. میں نے یہاں پہ اتار دیا امی جان بیگم صاحبہ اور اپنی بھتیجی کو، بس وہ یہاں سے پیدل جا رہے ہیں. یہ قریب ہی گھر ہے جن کے گھر محفل ہے. تو یہاں پہ یار ماحول چیک کریں کتنا کھلا ہے، ہر طرف کوئی گھر نہیں نظر آ رہا قریب قریب بھی. اور یہ دیکھیں پیاز کی فصل لگی ہوئی ہے سامنے، ماشاءاللہ کتنا موٹا موٹا پیاز ہے یار. یہ چیک کریں آپ، اوئے ہوئے ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. جن کی بھی یہ فصل ہے ان کو اس فصل میں برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. راستے میں جاتے ہوئے جہاں بھی کہیں قبرستان نظر آئے تو یہ والی دعا لازمی پڑھ لیا کریں، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر بھی عمل ہو جائے گا کیونکہ اس کا مطلب ہی یہی ہے اللہ پاک آپ کی اور ہماری مغفرت فرمائے. آپ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم آپ کے بعد آنے والے ہیں. یہ قبرستان ہمارے گھر کے قریب ہی ہے بالکل، اور ہمارے آبا و اجداد، دادا جان، دادی جان، بڑے بھائی اور تقریباً زیادہ رشتہ داروں کی قبریں اسی قبرستان کے اندر ہی موجود ہیں. اللہ پاک سب کی بے حساب بخشش فرمائے اور ہمیں بھی قبر سے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہلکی ہلکی دھوپ نکلنا شروع ہو گئی ہے اور آپ کے انتظار کی گھڑی کو کرتے ہیں ختم. Q&A سیزن ہمارا شروع ہو چکا ہے. آپ لوگوں کے ہر سوال کا جواب میں دوں گا. تقریباً 42 کمنٹس تھے جس میں آپ لوگوں نے سوالات کیے مختلف طرح کے، تو میں نے ان کو اٹھا لیا ہے. ان میں سے کچھ کمنٹس ایسے تھے جو بالکل سیم تھے، یعنی کہ اس میں پوچھے جانے والا سوال وہ سیم تھا. میں نے ان کو بھی اٹھا لیا تاکہ جس نے کمنٹ کیا ہے اس کا نام مینشن ہو جائے، اس کو خوشی ملے. اور اس نے جتنی محبت سے نام مینشن کیا ہے مجھے بھی اچھا لگے گا کہ میں اس کا نام لے کر آپ کو بتاؤں کہ کس نے کون سا کمنٹ کیا ہے. یہ ہیں سرسوں کے پھول ماشاءاللہ، یلو اور گرین کا کس قدر کتنا پیارا کنٹراسٹ ہو رہا ہے یار الحمدللہ. جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلا کمنٹ ہے مسٹر تنویر ایڈٹس، کہہ رہے ہیں بھائی آپ ایک Q&A ولاگ بناؤ، ریپلائی کرنا. تنویر بھائی مشورہ دینے کا بہت شکریہ. یہ ولاگ ہمارا Q&A ہے، اس میں آپ سب کے سوالات کے جواب ہی دوں گا. اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ کمنٹ ہے اٹھو اور بدلو. ان کے چینل کا نام ہے اور ان کا نام مجتبہ ہے، میں ان کو جانتا ہوں. اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں سر میرا کوسچن ہے آپ کا فیورٹ یوٹیوبر کون ہے؟ دیکھیں یار، کوئی بھی انسان کام کر رہا ہو دین کے حوالے سے ہو یا دنیا کے، اس کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ضرور ہوتا ہے جس کو دیکھ کر وہ کام کر رہا ہوتا ہے یا جس کو وہ لائک کرتا ہے. تو اسی طرح یوٹیوب کی دنیا میں میرا فیورٹ یوٹیوبر مصطفیٰ حنیف ہے کیونکہ ان کی چند چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں. ایک تو ماشاءاللہ جہاں پر بھی وہ جا رہے ہوں، راستے کے اندر نماز کا ٹائم ہو جائے، ماشاءاللہ نماز وہ بندہ لازمی پڑھتا ہے. میں نے نوٹ کیا پرسنلی، جو بات مجھے بہت اچھی لگی ہے. اور نیکسٹ ان کے ولاگ کے اندر کوئی بھی گانا باجا فحاشی اس طرح کی چیز نہیں آتی جو کہ مجھے پرسنلی اچھی لگتی ہے، اس لیے میں ان کو لائک کرتا ہوں. اور ویسے مجھے ان کے ولاگ بھی اچھے لگتے ہیں. آگے کمنٹ آیا ہے ڈیزائنری ہب 01 کی طرف سے. ان کے 3 سے 4 سوال ہیں ایک ہی کمنٹ کے اندر. سب سے پہلا سوال ہے آپ کی ارننگ. ابھی تک میری آن لائن حوالے سے، ہاں ٹک ٹاک میرا مونیٹائز ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یوٹیوب سے میری ارننگ نہیں ہے. اور نیکسٹ انہوں نے پوچھا کہ آپ کا تھمبنیل ڈیزائنر کون ہے.
है यार, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है कि मेरा थंबनेल डिजाइनर है एहतशाम भाई, जो कि मेरे थंबनेल को डिजाइन करते हैं। टिकटॉक पर मैंने उनके हवाले से वीडियो बनाकर भी अपलोड की है। अच्छा, और डेली रूटीन यार देखें, डेली रूटीन मेरी कोई खास नहीं है। वैसे रोजाना की बुनियाद पर आप मिनी व्लॉग के अंदर देखते ही होंगे, छोटे मोटे काम घर के, और कोई खास मेरी जॉब नहीं है। इमाम मस्जिद हूँ, उसके बाद घर में छोटे मोटे काम जैसे आम रूटीन में होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम यूट्यूब कैसे स्टार्ट करें? देखे यार, यूट्यूब स्टार्ट करना ये अच्छा एक फैसला हो सकता है आपका। इसमें सबसे पहले जो अच्छी चीज है वो ये होनी चाहिए कि आप अपने अंदर ऐसी एबिलिटीज को तलाश करें कि जो आप लोगों को दिखा सकें, लोगों को बता सकें या सिखा सकें। इंसान के अंदर कोई ना कोई खसूसियत जरूर होती है, या वो लोगों को एंटरटेन कर सकता है, या वो लोगों को कुछ सिखा सकता है, या वो लोगों को कुछ दिखा सकता है। अपना अच्छा कंटेंट बनाए, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। जी, आगे सवाल करते हैं हमारे ओवैस व्लॉग्स भाई, कह रहे हैं कि आप ये बताओ यूट्यूब 100K व्यूज पे कितने पैसे देता है? देखें यार, यूट्यूब पर अर्निंग जो है ना ये मुख्तलिफ होती है आपकी व्यूवरशिप के हिसाब से, यानी कि आपकी ऑडियंस कहाँ से आ रही है। अगर तो सिर्फ आपकी ऑडियंस पाकिस्तान से है तो आपकी अर्निंग डिफरेंट होगी। अगर आपकी ऑडियंस प्रीमियम कंट्री से है, यानी कि USA, UK, जापान से है, तो आपकी अर्निंग बढ़ सकती है। ठीक है, 100K पे आपकी अर्निंग अच्छी भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है आपकी व्यूवरशिप पे। आगे फिर कमेंट आया है मिस्टर तनवीर एडिट्स की तरफ से, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहला सवाल इनका ये है कि आपके शॉर्ट्स वीडियो वाले चैनल से मंथली कितनी अर्निंग होती है? अर्निंग मेरी शॉर्ट्स पे नहीं है, मैंने पहले बता दिया कि मेरी यूट्यूब से अभी तक अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि मेरा यूट्यूब मोनेटाइज नहीं है। 10 मिलियन व्यूज चाहिए आपको लास्ट 90 डेज के अंदर, तो मेरे अभी वो कंप्लीट नहीं हुए, थोड़े कम है, तो इसलिए मेरा शॉर्ट्स का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं है। उसके बाद आपके कितने ब्रदर एंड सिस्टर है? हम 4 भाई थे, इस वक्त 3 है। बड़े भाई का इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, बेहिसाब मगफिरत फरमाए, और हमारी एक बहन है। अच्छा, आगे सवाल करते हैं मलिक हरमैन लिखा हुआ है यहाँ पे, मुझे सही पढ़ना नहीं आ रहा, ये शायद गलती हो रही है, माफ कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। तो ये सवाल करते हैं भाईजान, आपका कोई भाई है? जी भाईजान, बिल्कुल, हम 4 भाई थे और इस वक्त 3 है। बड़े भाई का इंतकाल हो चुका है, इस वक्त हम 3 भाई हैं। अच्छा जी, आगे सवाल करने वाले हैं हमारे कबीर नेक्स्ट, इनके चैनल का नाम है, और ये सवाल करते हैं आपके बच्चे कितने हैं? यार अभी मेरे बच्चे नहीं है, क्योंकि अभी मैं खुद बच्चा हूँ। मेरी शादी को अभी 7 मंथ हुए हैं सिर्फ, और दुआ करें अल्लाह पाक सब बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फरमाए। अगला सवाल है हमारे शयान राशिद की तरफ से, सवाल करते हैं कि आप किस शहर में रहते हैं, प्लीज बताना। शयान भाई, मैं डिस्ट्रिक्ट लिया से हूँ और हमारा सिटी है फतेहपुर, जहाँ पे मैं रहता हूँ। अच्छा जनाब, आगे कमेंट आया है, नाम लिखा है बलोची, आगे पता नहीं क्या लिखा, मुझे सही पढ़ना नहीं आ रहा। अच्छा, ये कमेंट करते हैं कि मैं आपका बड़ा फैन हूँ, आपका तरीका बहुत अच्छा है, और मेरे कमेंट को लाइव के अंदर ले लो। जज़ाकल्लाह यार, आपने अप्रिशिएट किया, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। आपका कमेंट मैंने लाइव वीडियो के अंदर ले लिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है आहद, इनके चैनल का नाम है। ये सवाल करते हैं कि आते भाई आप थंबनेल बताओ किस तरह बनाते हो? यार थंबनेल का मैंने बताया है कि मेरे डिजाइनर हैं एहतशाम भाई, माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं और इनके डिजाइन भी बहुत अच्छे होते हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा कमेंट आया है फैक्ट फ्यूल की तरफ से, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कमेंट करते हैं कि मेरा नाम बिलावल है, आप अपनी लाइफ में क्या गोल अचीव करना चाहते हैं? देखें बिलावल भाई, आपने अच्छा सवाल किया है और ये दूसरों के लिए मोटिवेशन का सबब भी बन सकता है। इंसान कोई भी काम जब स्टार्ट करता है उसका कोई ना कोई मकसद होता है, वो उसी को पूरा करने के लिए कोशिश भी करता है। तो मेरा मकसद यही है, इस वक्त मैं सोशल मीडिया पर मौजूद हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और मकसद यही है कि यहाँ पर रहते हुए गुनाहों से बचकर अल्लाह पाक को राजी करते हुए मैंने मेहनत करनी है। और जितने भी लोग बेपर्दगी करते हुए, गाने बाजे को प्रमोट करते हुए इस फील्ड में आगे जा रहे हैं, और मैंने इन सब चीजों के बगैर आगे जाकर दिखाना है और लोगों को बताना है कि इन सब चीजों के बगैर भी सोशल मीडिया पर कामयाब हुआ जा सकता है, वो भी इस गए गुजरे दौर में। मगर कुछ अच्छे लोग भी हैं जो इन सब चीजों को डिनाई करते हैं और माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं। और मेरा अगला मकसद ये है कि अपने वालिदैन को हर तरह की खुशी मुयस्सर करना है। जैसे हम बचपन में छोटे हुआ करते थे, उस वक्त वालिदैन ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और इस वक्त हम जब बड़े हो रहे हैं, वालिदैन बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, हमारा ये मकसद होना चाहिए, हमारी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि अपने वालिदैन को हर तरह की सहूलत, हर तरह की फैसिलिटीज दें, ताकि हमारी ये फैसिलिटीज उनके लिए खुशी का सबब बने। बिलावल भाई, अगला आपका सवाल ये है कि आपके बच्चे हैं कि नहीं, क्योंकि भाभी व्लॉग में नहीं दिखाए। देखें यार, घर वालों का व्लॉग में आना जरूरी भी नहीं है, और वैसे भी शरीयत के अंदर ये जायज भी नहीं है, गुनाह है, बेपर्दगी है। और दूसरी बात ये है कि आपके बच्चे हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरे बच्चे नहीं है, मेरी शादी को 7 महीने हुए हैं और अभी मैं खुद बच्चा हूँ। मजाक कर रहा हूँ यार, मैं अब बचपन वाली उम्र से गुजर चुका हूँ। अच्छा जी, बिलावल भाई का अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कह रहे हैं कि आपको यूट्यूब के सफर पर कौन कौन सी मुश्किलें आई? ये सवाल बहुत ही अहम है आप सबके लिए। अच्छा यार, यूट्यूब जब मैंने स्टार्ट किया ना, सबसे जो बड़ी मुश्किल मुझे आई ना, वो ये थी कि मुझे कैमरे के सामने बोलना नहीं आता था। देखें, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, तो इस फील्ड के अंदर आप
آپ کو कम से कम कैमरे के सामने कॉन्फिडेंटली बोलना आना चाहिए, क्योंकि कैमरा एक ऐसी चीज है, ये फिजिकली पब्लिक नहीं है, ये हमें कोई बंदा नजर नहीं आता जिससे हम बात कर रहे हो। अभी मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दे रहा हूँ, आप लोग मुझे नजर नहीं आ रहे, फिर भी मैं आप लोगों के हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ। आम तौर पर होता नहीं है, क्योंकि कैमरे में कोई भी बंदा नजर नहीं आता जिससे हम बात कर रहे हो। तो यही चीज मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल लगी जब मैंने ये सफर स्टार्ट किया। और आगे नेक्स्ट और लास्ट सवाल है बिलावल भाई का, आपको यूट्यूब पे कितना टाइम हो गया है और आपने होप क्यों नहीं छोड़ी, इतने कंसिस्टेंट कैसे रहे अपने गोल पर? माशाल्लाह यार, ये सवाल भी इनका बहुत अच्छा है। मुझे यूट्यूब पर तकरीबन 5 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, 6 साल के करीब आप लगा लें, और मैंने इतने अरसे में इतनी ज्यादा गलतियां की है ना, इतनी ज्यादा गलतियां की हैं कि मैं आपको क्या बताऊं यार। मेरे तकरीबन 15 से ज्यादा यूट्यूब चैनल जो डिलीट हो गए, जो मैंने खत्म कर दिए। टिकटॉक अकाउंट कितने ज्यादा थे जो मैंने खत्म कर दिए, उन पर अब मैं काम नहीं कर रहा हूँ। और कंसिस्टेंट रहना वाकई बहुत मुश्किल है, खसूसन इस फील्ड के अंदर। दिल टूट जाता है, मोटिवेशन खत्म हो जाती है जब इंसान एक काम करता है, उसको उसकी मेहनत का फल ना मिल रहा हो। जिस तरह मुझे 5 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, मैंने छोड़ा नहीं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आप लोग मुझे देखते हैं। तब आप लोग मेरे साथ नहीं थे, ना ही मुझे कोई देखने वाला था, मगर कंसिस्टेंट मैं रहा हूँ। वो इस वजह से कि मुझे उम्मीद थी कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह पाक मुझे इसका फल जरूर देगा। मगर उसके बाद जब मैं लोगों को देखता था जो कामयाब हो चुके हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे फिर मजीद मोटिवेशन मिलती थी, यार ये भी कर रहा है, मैं भी कर पाऊंगा। गलतियों पे गलतियां करता गया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज आपके सामने मौजूद हूँ। और इस वक्त आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते पढ़ते मैं इन फसलों में आ गया हूँ, इस बाग में आ गया हूँ। माशाल्लाह बहुत ही मजा आ रहा है, हल्की हल्की शबनम पड़ी हुई है, मेरे पैरों को शबनम लग रही है। माशाल्लाह बहुत ही मजा आ रहा है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के भी और इस सफर को आगे लेकर चलने में भी। अच्छा जी, आगे कमेंट आया है सैयद फहीम की तरफ से, कह रहे हैं आपने मुकम्मल कुरान ओमान में हिफ्ज किया और कितने टाइम में हिफ्ज किया? फहीम भाई, मैंने ओमान में कुरान पाक को हिफ्ज करना स्टार्ट जरूर किया था, मगर मैंने कुरान पाक के हिफ्ज मुकम्मल नहीं किया। तदरीसी कोर्स कर लिया, उसके बाद मैंने कुरान पाक को पढ़ाना शुरू कर लिया, यानी कि हिफ्ज करवाना शुरू कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट है कमेंट शहीरुर रहमान 6695, इनके यूट्यूब चैनल का नाम है, और ये कमेंट करते हैं आतिफ भाई आपका यूट्यूब पर फेमस होने के बाद क्या करने का इरादा है? यार देखिए, इरादा तो मेरा अच्छा है, और सबसे पहले इरादा तो ये है कि इस सफर को आगे तक लेकर जाना है, इस सफर को छोड़ना नहीं है। अगर मैंने पिछले 5 या 6 साल कामयाबी ना मिलने पर नहीं छोड़ा, तो इंशाल्लाह अब भी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा सबसे पक्का इरादा है और इंशाल्लाह इसी पर ही कायम रहूंगा। उसके बाद लोगों की मदद करना, क्यों? क्योंकि अपने लिए तो जीते हैं सब इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, और अल्लाह पाक से उम्मीद भी है कि मुझे इस मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा। आगे सवाल फिर रिपीट हुआ है असद अली भाई की तरफ से, कह रहे हैं आतिफ भाई आपके कितने बच्चे हैं? मेरे अभी बच्चे नहीं हैं, 7 महीने हुए हैं शादी को, दुआ फरमाए अल्लाह पाक सब बेऔलादों को नेक और साले औलाद अता फरमाए। अगला सवाल है रजा बारलिस्ट की तरफ से, कह रहे हैं भाई प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर करें, आपने कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज किया है या 6 पारे करके मुदर्रिस कोर्स 5 महीने का शुरू कर दिया? रजा भाई, मैंने मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज नहीं किया, मैंने 6 पारे ही हिफ्ज किए थे। उसके बाद मैंने लाहौर में कोर्स ज्वाइन कर लिया, 5 महीने का मुदर्रिस कोर्स, और उसके बाद मैंने फिर तदरीस करना स्टार्ट कर दी। अच्छा जी, अभी तकरीबन हमारे आधे कमेंट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं, मैंने रिप्लाई कर दिया है, और मेरा हाथ भी ये वाला थक गया है मोबाइल पकड़ पकड़ के। तो इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट की रेस्ट के बाद फिर नेक्स्ट सवाल शुरू करते हैं, और उतनी देर में ये मजेदार सा अमरूद खा लेता हूँ, इन प्यारे प्यारे दरख्तों से अभी मैंने तोड़ा है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मीठा यार। अच्छा जी, अगेन स्टार्ट करते हैं सवालात को। मोहम्मद फारूक भाई सवाल कर रहे हैं, आप कब खाना खाते हो? फारूक भाई, खाना जब भूख लगती है मैं खाना खा लेता हूँ। वैसे तो आमतौर पर आपको पता है सुबह दोपहर और शाम को ही खाया जाता है, मगर इस वक्त सर्दियां हैं, चूंकि दिन छोटे हैं, और 2 टाइम ही आमतौर पर खाना खाता हूँ मैं। आगे सवाल करने वाले हैं जनाब साइबर वॉरियर, सवाल कर रहे हैं आपका चैनल मोनेटाइज है और इनकम कितनी आ रही है? जनाब, मोटिवेशन के लिए तो अच्छी बात है, बतानी चाहिए, मगर इस वक्त बदकिस्मती से मेरा चैनल कोई भी मोनेटाइज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, बुजुर्गों की हाल है? मैं बहुत मजबूर खानदानी बंदा, मेरा जवान पुत्र तरीकाल 5वां साल है, गुर्दे की तकलीफ है, अपनी दात की तकलीफ है। हेलो जी, दुआ कर दियो, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आजकल जो है ना यार, मजबूर लोग बहुत ज्यादा है। बंदा हर किसी को ये भी नहीं कह सकता नहीं जी ये ड्रामे कर रहा है या जानबूझकर मांग रहा है या इसकी वाकई कोई ना कोई मजबूरी है, बस अल्लाह पाक बेहतर जानता है। मगर मैंने अपनी हस्बी तौफीक जो भी है उनको देने के बाद मैंने अलविदा किया है, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है व अम्मस्साइला फला तनहर, तो कुछ ना कुछ जो भी हस्बे तौफीक है आप दें। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये वाकई ऐसा है कि जो जानबूझकर मांग रहा है या सही सलामत है, नौजवान है, हाथ पाँव बिल्कुल सही है, तो उसको फिर आप कह सकते हैं कि यार
आप खुद मेहनत करें। अच्छा जी, आगे चलते हैं अपने सवालात की तरफ। और मलिक दाऊद भाई सवाल कर रहे हैं, भाई मेरा भी यही यूट्यूब चैनल है, मैं उर्दू पोएट्री वीडियो बनाता हूँ, क्या मेरा चैनल मोनेटाइज होगा? मलिक दाऊद भाई, आपका चैनल मोनेटाइज होगा अगर आपका अपना रियल कंटेंट है। पोएट्री बनाते हैं या आप गजलें पढ़ते हैं या आप शेर व शायरी करते हैं, जो भी कंटेंट है मोनेटाइज होगा अगर आप अपनी आवाज में बनाते हैं। हाँ, अगर आप कॉपीराइट उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी की आवाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फिर यूट्यूब की अपनी मर्जी है। बाज़ औक़ात रीयूज कंटेंट का इशू आ जाता है। अच्छा कंटेंट बनाए, इंशाल्लाह मोनेटाइज होगा। और आगे जनाब सवाल करने वाले हैं सुबहान नवीद। नवीद भाई, आपका नाम सुबहान नवीद है, कोशिश करें नाम अपना चेंज कर लें, अब्दो सुबहान रखें, क्योंकि सुबहान किसी को नहीं पुकार सकते। अल्लाह तबारक व तआला की जात सुबहान है और हम अब्दो सुबहान कह सकते हैं, अकेला सुबहान नहीं कह सकते। जिस तरह किसी का नाम रहमान है, उसको हम रहमान नहीं पुकार सकते, अब्दुर रहमान उसका नाम होना चाहिए और अब्दुर रहमान ही पुकारना चाहिए। सुबहान, रहमान, कय्यूम, ये सारे अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नाम है और अल्लाह के अलावा कोई रहमान नहीं हो सकता, कोई सुबहान नहीं हो सकता, कोई कय्यूम नहीं हो सकता। तो बहरहाल इनका सवाल ये है कि क्या आप पूरे कुरान पाक के हाफिज हो? जी नवीद भाई, मैं पूरे कुरान पाक का हाफिज नहीं हूँ, बल्कि मैंने जितने पारे हिफ्ज किए थे उसके बाद मैंने कुरान पाक को हिफ्ज मुकम्मल नहीं किया। अच्छा जी, अगला सवाल है जिंदगी का सच, इनके चैनल का नाम है और ये सवाल कर रहे हैं, आतिफ भाई आप यूट्यूब के अलावा कोई और काम करते हो? मेरे भाई, इसके अलावा मैं और काम इमाम मस्जिद हूँ और साथ घर के छोटे मोटे काम करता हूँ। आगे जनाब सवाल आया है हमारे वकास भाई की तरफ से, कह रहे हैं आप अभी सिर्फ इमाम मस्जिद है या कोई कारोबार भी करते हैं, और आपके दूसरे जो भाई थे वो कहाँ हैं आजकल? वकास भाई, मैं अभी सिर्फ इमाम मस्जिद हूँ, साथ सोशल मीडिया को लेकर चल रहा हूँ, इसके अलावा मेरा कोई बिजनेस या कोई और काम फिजिकली नहीं है। ठीक है, मेरे जो दूसरे भाई हैं वो छोटे भाई मेरे इमाम मस्जिद है और साथ बड़े भाई जो मुझसे बड़े हैं उनका अपना कारोबार है, वो अपना काम संभालते हैं। और जनाब अगला सवाल है अली आरबी की तरफ से, कह रहे हैं कि आप अभी ओमान को मिस करते हो? क्योंकि मैं ओमान में ही पैदा हुआ हूँ। माशाल्लाह अली भाई, अल्लाह आपको मुबारक करे, आपकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। और मैं अभी ओमान को याद इसलिए करता हूँ कि मेरे वहाँ पे कुछ दोस्त बन गए थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा उनके साथ वक्त गुजरा। और ओमान के अंदर माशाल्लाह ऐसी ऐसी कुछ जगह हैं जिनकी मुझे याद आती है, जैसे कुछ ज़ियारात है, अंबिया इकराम के मिज़ारात हैं, उनकी मुझे वाकई याद आती है। माशाल्लाह ओमान कंट्री एक इस्लामिक कंट्री है और बहुत अच्छा कंट्री है, मेरा वहाँ का विजिट बहुत अच्छा रहा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह उसी मुल्क की वजह से आज मैं दीन की तरफ हूँ। अल्लाह पाक उस मुल्क में रहने वालों की खैर फरमाए और हम सबको दीन पर इस्तकामत अता फरमाए। अच्छा, आगे हैं हमारे मुआज अब्बासी, व्हाट इज योर एज? अच्छा, मेरी एज पूछ रहे हैं। वाओ मुआज भाई, मेरी एज इस वक्त 27 ईयर है। अच्छा जी, आगे हसन अख्तर सवाल कर रहे हैं कि आपकी कॉस्ट क्या है? देखें हसन अख्तर भाई, मैं इन चीजों पे ज्यादा डिपेंडिंग नहीं हूँ कि आपकी कॉस्ट क्या है और आप अराई हैं, जट हैं, पठान है, शेखपू जो भी हैं, मैं इन चीजों में ज्यादा नहीं पड़ता। और मेरी जो अपनी शादी हुई है वो भी विदाउट कास्ट हुई है। बेसिकली हम अराई हैं, मैं ज्यादा मैटर नहीं करता इन चीजों पर कि यार आप कौन है। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया, ये उसका शुक्र है। और हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। अल्लाह पाक हम सबको इस पर इस्तकामत अता फरमाए, बस यही दुआ किया करें। अच्छा जी, आगे फिर मलिक साहब आ गए। जनाब आपके कितने ज्यादा कमेंट को मैंने मेंशन कर दिया है। आपको यूट्यूब पर वीडियो बनाने का ख्याल कैसे आया? यार यूट्यूब पर वीडियो बनाने का ख्याल मुझे इस तरह आया कि मैं ना एक दफा मस्जिद में बयान कर रहा था, उस वक्त मैं लाहौर था, तो बयान करते करते ना सामने जो ऑडियंस बैठी हुई थी, जो बयान सुनने वाले थे, उनमें से कुछ लोग कराची से आए हुए थे, मदनी काफिला लेकर आए थे हमारे पास लोगों को दीन की तबलीग करने के लिए। तो उनमें से एक बंदा मुझे कहने लगा कि कारी साहब आपकी आवाज अच्छी है, आप ऐसा करें कि यूट्यूब पर ना अपना एक चैनल बनाएं, उस पर आप वीडियो बनाया करें। तो जैसे मैंने सुना मैं हैरान हो गया हूँ कि यार ये चैनल क्या होता है? ये चैनल तो ये टीवी चैनल जिस तरह न्यूज चैनल होते हैं, ये ड्रामे वगैरह, इनका मुझे पता था यार ये चैनल होते हैं, मगर यूट्यूब पर चैनल बनता है इसका मुझे नहीं पता था। उसने मुझे फिर बताया कि इस तरह चैनल बनता है, ये इसके क्राइटेरिया होते हैं, तो इस तरह आप बनाएं, फिर आप जब इस पर वीडियो अपलोड करेंगे आपको अर्निंग आएगी, इस तरह, यानी कि उन्होंने मुझे दीगर चीजें बताई। तो उस वक्त उस बंदे ने मुझे यूट्यूब चैनल बनाकर दिया था। अच्छा जनाब, अगला सवाल है ओल्ड राजा, इनके चैनल का नाम है। सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, लव फ्रॉम जेहलम। जज़ाकल्लाह जनाब, आप जेहलम से देख रहे हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। सवाल कर रहे हैं, आप आगे क्या करना चाहते हैं? जनाब आगे मैं क्या करना चाहता हूँ ये मैंने बता दिया है। हर इंसान के गोल होते हैं, कुछ मकासद होते हैं। अल्लाह पाक हम सब के मकसद को पूरा फरमाए और हम सब का मकसद अच्छा होना चाहिए, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की रजा शामिल होनी चाहिए। मेरे भाई आसिफ नहीं है, मेरा नाम आतिफ है। होम टूर कब दोगे? अच्छा होम टूर, चले इंशाल्लाह, अगर आप लोग 100 से ज्यादा कमेंट मुझे कर दें, होम टूर करवा देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, अगला सवाल है अहमद शहर, इनके चैनल का नाम है। सवाल कर रहे हैं, भाई आपकी जवानी की पिक है आपके पास तो प्लीज दिखाओ। यार अभी मैं जवान हूँ, मैं कौन सा बूढ़ा हो गया हूँ। चले मैं आपको जवानी की पिक दिखा देता हूँ, ये देख लें आप साथ। नेक्स्ट और लास्ट कमेंट है, इट्स मलिक बासित,
ان کے چینل کا نام ہے. سوال کر رہے ہیں عاطف بھائی آپ کے یہ 1.84 کے سبسکرائبر اپنے ویلاگ سے ہوئے یا کوئی چینل خریدا؟ دیکھیں باسط بھائی میں نے کوئی بھی چینل پرچیز نہیں کیا, یہ میرے ریئل سبسکرائبر ہیں اور میرے اپنے ویلاگ والی ویڈیو سے ہی انہوں نے سبسکرائب کیا ہے. اچھا یار یہ تھی ہماری آج کی Q&A ویڈیو جس میں نے کوشش کی ہے کہ آپ سب کے سوالات کو کور کروں. اگر کسی کا کوئی کومنٹ مس ہو گیا یا سوال رہ گیا تو ان سے میں معذرت کرتا ہوں, کیونکہ بہت سارے کومنٹ سیم بھی تھے تو ان کو میں نے سکپ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہ ہو اور آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ سب کے سوالات کے جوابات کلیئر ہو چکے ہوں گے. تو آج کا ولاگ کرتے ہیں یہاں پہ اینڈ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.